Hello everyone, welcome to the Academic Sum. Amrita, I firmly believe that you should keep trying until we get it right. Let's start our trial for today. Let's start with a new chapter, exponents from grade 7 maths. These exponents and powers are basically used when you are going to express very large numbers like some 10 or 12 digit number or a very small number, 0.00000, it runs like that. So how do we understand the concept of exponents? How do we build on that concept? If you want to watch all those about exponents, then please like, share and subscribe to my channel Siddhi Academics. Let's start with a new chapter from class 7. Now let's look into use of exponents in real life. Like we discussed in the introduction, exponents हम use करते हैं to write huge numbers or very small numbers. कैसे? किस लिए? वो भी देखते हैं. Let's first go into the first point that I have taken. While taking measurements, हम use तो करते हैं पर हम सोचते भी नहीं तब. जब when we measure area of a balcony or any other room कि पूरा built up area of a house, हम क्या करते हैं उसे feet में measure करते हैं. उसके लेंथ और ब्रेथ को. देन वी नीड टू प्रोवाइड द मेजरमेंट ऑफ दैट एरिया. किसमें प्रोवाइड करते हैं? फीट स्क्वायर. सपोज मुझे चाहिए बालकनी ऑफ 100 फीट स्क्वायर, तो मैं इस तरह से लिखती हूँ पर विदाउट रियलाइजिंग कि मैं फीट स्क्वायर ले रही हूँ. वाई? बिकॉज देखो एक पर्टिकुलर रूम का लेंथ इनटू ब्रेथ करके ही हमें एरिया मिलता है. सो लेंथ भी फीट में हुआ और ब्रेथ भी फीट में हुआ, सो इट विल बी फीट स्क्वायर. राइट, यही होगा उसका डायमेंशन मेजर करने के लिए, measurement के लिए feet square. So this is how we are using it without realizing. Similarly, when estimating volume of a greenhouse जिसमें हम certain kind of plants रखते हैं so that they grow really well, तो उसका वॉल्यूम अगर मेजर करने के लिए जरूरत पड़े then we provide the solution in, और या फिर किसी टैंक, वाटर टैंक का ले लीजिए, उसका जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो हम जो सॉल्यूशन है उसे किस में प्रोवाइड करते हैं? क्यूबिक फीट. मतलब इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर फीट बोलते हैं 100 स्क्वायर फीट या फिर 100 क्यूब फीट जब हम वॉल्यूम किसी चीज का एस्टिमेट कर रहे होते हैं, क्यूबिक फीट बोलते हैं. सो यहाँ पर हम मेजरमेंट लेते हुए इन रियल लाइफ वी आर यूजिंग बोथ ऑफ दीज exponents without realizing that. Now next is scientific scale. जब chemistry, suppose हम chemistry की बात लें, chemists indicate a substance with pH of 7 as neutral. But what does pH of 7 actually mean? This represents 10 to the power 7. Okay, उसका value actually है 10 to the power 7. Let's not get into unit of measurement here. pH का the actual value जो है pH of 7 means 10 to the power 7. So this 7 expresses the exponent. Okay, exponent value. Similarly, दूसरा substance का pH suppose 9 है, then it represents 10 to the power 9. Okay, actually this 9 here represents 10 to the power 9. This means what does 10 to the power 9 mean? It represents the second substance is 100 times more basic than the first. pH of water is 7, मतलब वो 10 to the power 7 है उसका actual value. Now something that is 9 will come between 7 and 14. 7 और 14 के बीच जो भी substances आते हैं उनका pH आता है, they are called basic. तो 9 जो है, अगर किसी का pH वैल्यू की सब्सटेंस का 9 निकला then it means it is 100 times more basic than water. और इस तरफ अगर सपोज 10 to the power 6 निकला तो 0 तक होता है. 0 to 7 जो होते हैं वो सब्सटेंसेस एसिडिक होते हैं. ऑलराइट, तो 10 to the power 6 सपोज या फिर 10 to the power 5 निकला, दैट मींस दैट इज that many times more acidic than water. जो water जो होता है वो neutral होता है और उसका pH 7 होता है. So this is how we are using it in science as well. Now for representing large, very large or very small numbers also we are using exponents. Suppose the speed of light. What is the speed of light? How will I read it? 300 million meter per second. पर जब पढ़ने के लिए या लिखते वक्त एक जीरो घटा दूं, एक जीरो बढ़ा दूं, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा. So this is very difficult to write and also prone to mistakes. गलती बहुत करने की chances बढ़ जाते हैं. So we write it in exponential form. 3 into 10. The 3 into 10 to the power 8 meter per second is the speed of light. Similarly, मैं surface area of earth अगर बोलूं तो 510 million है. मिलियन अगर 000 करके लिखूं तो कितने सारे जीरोस आते हैं? मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है. So it's better for me to represent it in exponential form. So it will be like this: 10 to the power 8, 5.09, 10 to the power 8 million
नॉट मिलियन एनीमोर, किलोमीटर स्क्वायर. ऑलराइट, तो ये इजियर मेथड है टू राइट द सेम सरफेस एरिया, राइट, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. सिमिलरली बहुत छोटे चीजें लाइक रेडियस ऑफ लेट्स से एन एटम, रेडियस ऑफ एन एटम, एटम बहुत छोटी चीज के रेडियस बहुत छोटा होता है. इट्स जनरली एक्सप्रेस्ड इन पाइकोमीटर. पाइकोमीटर जो है दैट इज एक्चुअली 10 to the power minus 12 मीटर. ओके, तो हम इसमें मेजर करते हैं रेडियस को ऑफ दिस थिंग, ऑफ एन एटम और इवन स्मॉलर थिंग्स. सो यहां पर भी हम एक्सपोनेंट्स यूज करते हैं. सो वी सॉ वेयर ऑल इन रियल लाइफ वी आर यूजिंग एक्सपोनेंट्स, समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज. ऑलराइट, so for very large or very small numbers to represent, it's much easier, much more accurate to use exponents. Now let's understand how to express exponents. So we already understood that to express large numbers in shorter form, use exponents. So suppose we are going to write 7 raised to the power 5. Okay, exponential form है, जो कि actually क्या represent करेगा? 7 multiplied to itself 5 times. 7 into 7 into 7 into 7 into 7. Then we write it like this, 7 to the power 5. Generally 7 को लिखते हैं नॉर्मल साइज में और 5 जो ऊपर लिखते हैं टू द राइट हैंड साइड कॉर्नर, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर ऑफ 7, वो थोड़ा छोटा लिखते हैं एज कंपेयर टू 7. ऑलराइट, तो ये हो जाता है उसका पावर नोटेशन ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 5. सो इसमें 7 को क्या कहेंगे? 7 वी कॉल द बेस नंबर. 7 को कहते हैं बेस नंबर. तो जो नंबर नीचे लिखा जाता है, जिसको हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं बेस नंबर. सिमिलरली 5 जो जितने टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, दैट इज द एक्सपोनेंट. तो 5 जो है उसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट. एंड हाउ डू वी रीड दिस? वी रीड इट एज 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 5. Similarly 7 raised to the power 6, 7 raised to the power 7, like that it can, depending on the number, or 8 to the power 5, कुछ भी. This notation is called exponential form और power notation. ये जो हमने लिखा इसको हम कहते हैं exponential form और power notation. 7th of 5, what does it actually, ये वैल्यू कौन सा एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं? अगर 7 को हम ऐसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू है 16,807. उसको हम इस तरह से 7 टू द पावर 5 के वे में रिप्रेजेंट करते हैं. कभी डिविजन करना हो, कुछ सिंप्लीफिकेशन करना हो, 16,807 को लेकर करना, इट विल बी डिफिकल्ट. एट दैट प्लेस इफ आई राइट 7 टू द 5, it will be much easier while dividing or simplifying some expression. Writing 7 to the power 5 most of the times will be much easier, all right, instead of 16,807. So this is how we express exponents. तो हमने सीखा बेस नंबर, एक्सपोनेंट, और ये पूरे को क्या कहते हैं? कहते हैं पावर नोटेशन. और उसको रीड कैसे करते हैं? लाइक 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, दैट इज बेस नंबर रेज़ टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट. ऑल राइट, now let's understand parts of a power which you have already seen in the previous slide. Base number, the number which is to be multiplied. Exponent, the number which written on the top right corner which represents the number of times we need to multiply the base. मतलब 7 base number है और n represents the number of times we'll multiply 7 with itself. Power notation क्या होता है? Base number along with the exponent is called, the entire thing is called as power notation. All right. So we don't realize 1, 2 हम जब लिखते हैं और any other number 3, 13 so on until infinity, जो भी हम नंबर लिखते हैं उसका एक पावर रहता है. What? Power is 1 in each case. हम इसे लिखते नहीं है, by default ये रहता है to the power 1. Similarly, so we read it as 7 raised to the power 1 और simply हम 7 कह देते हैं, simply 3, 4 कह देते हैं, but actually उनका पावर एक्सपोनेंट जो होता है, एक्सपोनेंट होता है 1. सिमिलरली 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 को क्या कहेंगे? 7 स्क्वायर्ड कहते हैं. सपोज एक स्क्वायर है विथ साइड 7 यूनिट्स. ओके, तो हम उसका एरिया निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? साइड इंटू साइड, मतलब 7 इंटू 7 करेंगे. तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर कम्स बाय मल्टीप्लाइंग साइड इंटू साइड. सो साइड का लेंथ तो सेम होता है स्क्वायर में.
सो इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज 7 स्क्वायर. व्हाई वी कॉल इट 7 रेज टू द पावर ऑफ 2? ये सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूला से ही आ रहा है. 7 स्क्वायर्ड कहते हैं, नॉट 7 रेज टू द पावर ऑफ 2. सिमिलरली 7 रेज टू द पावर 3 हम क्या कहते हैं? 7 क्यूब. क्यों? जब हम एक क्यूब लेते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम? उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब सेम रहता है. सो सेम रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? साइड इंटू साइड इंटू साइड करके उसका वॉल्यूम निकालते हैं. सो 7 इंटू 7 इंटू 7, क्यूब विथ 7 यूनिट्स साइड का अगर हो उसका, तो हम क्या करेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज 7 क्यूब. फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वी हैव टेकन दिस क्यूब वर्ड 7 क्यूब. ऑलराइट, तो ये याद रखने का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. हाउ टू रीड 7 रेज टू द पावर ऑफ 2? वी रीड इट एज 7 स्क्वायर्ड, और 7 रेज टू द पावर 3 वी रीड इट एज 7 क्यूब. और एक चीज, if it is 7 raised to the power of 0 or any number natural number raised to the power of 0, what is its value? It represents 1. okay, मतलब वो बिल्कुल मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है. so what is left? 1 is left. all right, so 0 is the number of times it needs to be multiplied with itself. so it is 0 means it's not getting multiplied with itself, so it is 1. always remember, any number, natural number raised to the power of 0 is always equal to 1. all right, तो एक बेसिक सा हमने जो है जनरल नोटेशन दे दिया है. 7 raised to the power n is equal to 7 into 7 into 7, 7 multiplied to itself 9 times, and it is read as 7 raised to the power of n. all right, let's move to the next slide. Now let's do some questions to get the idea of exponents even better. मैं बार बार बहुत सारे questions कराऊंगी so that हमारे जो exponents के जो doubts हैं, जो कुछ भी हैं, वो clear होते चले. so 6561 को हम exponential form में represent करेंगे. let's find out what are its factors. for that we need to find out. तो ये divisible किससे होगा? 2 से तो divisible नहीं होगा. unit digits में 1 है, odd number है. so now let's see for 3. 6 plus 5 is 11. 11 plus 6 is 17. 17 plus 1 is 18. So 18 is divisible by 3 means this is divisible by 3. So 3 से start करते हैं. 3, 3 2 are 6, 3 1 are 3. फिर ये हो जाता है 3 1 से 3 के बाद ये 26 हो जाता है. 3 8 are 24 होने के बाद यहाँ पर 2 आ जाता है. So it becomes 3 7 are 21. यहाँ पर फिर से 3 से divisible है. 3 7 are 21. उसके बाद 8 आ जाता है. 3 2 are 6. 8 minus 6 कितना होगा? 2. यहाँ पर 2 आ जाएगा. So it will be 27. So it is again divisible by 3. 3 9s are 27. So again if you see this number is 18. if you add all the digits, तो वो भी divisible है by 3. So again we will divide by 3. 3 2s are 6. 7 minus 6 is 1. यहाँ पर 1 आ जाता है. 3 4s are 12. 3 3s are 9. Then again it is divisible by 240 is divisible by 3. 3 8s are 24. 3 1s are 3. all right, 3 से फिर से डिविजिबल होगा. सो 3 2 are 6, 3 7 are 21. ये हो जाएगा 3 9 are 27 और फाइनली आ जाएगा 3 3 are 9. सो वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर डिवीजन. सो यहाँ पर 6561 एक्चुअली है 3 का ही 3 के ही मल्टीपल से बन रहा है. सो 3 into 3 into 3 into 3 सारे 3 में लिख देती हूँ. 4 3 मैंने लिख दिए एंड देन 4 more 3s to write. सो ये कितने 3 से बना? 8 3 मल्टीप्लाई होते हैं तो 6561 बनता है. सो इट इज 3 raised to the power of 8. ऑलराइट, या तो 6561 लो या 3 to the power 8. जब हम मैंने पहले भी डिस्कस किया था, व्हेन यू आर सिंप्लीफाइंग, dividing, doing some kind of mathematical operation, complex mathematical operation using 3 to the power 8, ये exponential form better easy होता है rather than using 6561. वो कैसे, कहाँ पे? we will see it when we solve questions from algebra or any other mathematical operation. Which one is greater, 7 cube or 3 raised to the power of 7? So 7 cube मतलब हमने पहले भी देख लिया, 7 into 7 into 7, तो 7 7 are 49. 49 to 7 अगर हम निकालेंगे that is 343. वैसे 3 to the power 7 देख लेते हैं कितना है. पहले ही स्लाइड में हमने किया था 3 raised to the power 8 है 6561 और 3 to the power raised to the power 7.
मतलब मैं अगर यहां से यहां तक लूं, 3⁻7 कितना होगा, सॉरी यहां तक लूं तो ये हो जाएगा 2187। तो कौन सा बड़ा हुआ, ऑब्वियसली 3⁻7 विल बी बिगर। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा व्हेन इट इज बीइंग आस्क्ड इन सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाइड 7 टाइम्स दैट इज इक्वल टू 2187। सो नाउ वी रियलाइज दैट यू फ्रॉम द बेस नंबर देखें तो 3 जो है वो लेस देन 7 है, बट 3⁻7 कई गुना बड़ा है देन 7⁻3, राइट? बिकॉज since 2187 is a much better, larger number than 343, right? So kabhi bhi base number dekh ke we cannot get confused. We have to find out the total value and then we can find out which one, compare them actually to find out which one is greater. Let's do one more question. Expand a to the raised to the power of 4, b to the power of 6, a6, b4 and so on. ये सारे हमें दे दिए गए हैं algebraic terms एंड क्वेश्चन पूछ रहा है आर ऑल ऑफ देम सेम। तो हमने लाइक टर्म्स पढ़ा था, जब हमने अलजेब्रा लास्ट ईयर पढ़ा था तो हमने लाइक टर्म्स पढ़ा था जिसमें ये कहता है कि एक्स वाई जेड हो या हाँ एक्स वाई जेड हो तो मैं जेड वाई एक्स लिखूं या वाई एक्स जेड लिखूं, चाहे किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक्स आगे पीछे करूं, वाई आगे पीछे करूं या जेड आगे पीछे करूं, ये सारे के सारे लाइक टर्म्स है क्योंकि एक्स जो है वो एक ही बार आता है, वाई एक ही बार आ रहा है, जेड। सिमिलरली ए स्क्वायर बी अगर हो तो बी ए स्क्वायर लिखूं भी वन एंड द सेम थिंग है। तो यहाँ पर अगर ए रेज टू पावर 4 है, ए रेज टू पावर 4 बी 6 है, देन इज इट नॉट सेम एज बी 6 रेज टू पावर ए 4? मैंने बस आगे पीछे कर लिए बी रेज टू पावर 6 और ए रेज टू पावर 4 को, इसको आगे लेके इसके पीछे ले लिया, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। वैसे लाइक टर्म्स के उसमें देखो तो दे आर इक्वल, पर अगर एक्सपैंड करने को कहा ही है तो क्वेश्चन में हमें एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। तो एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड करेंगे तो a will be multiplied to itself 4 times and b is multiplied to itself 6 times. So this is a raised to the power 4 b6 expansion. Similarly b6 a to the power 4 कर ले, b will be multiplied to itself 6 times, multiplied with a to itself 4 times. तो ये और ये दोनों एक ही वैल्यू देंगे, राइट? क्योंकि हम एक्सपैंड करते हैं तो एक ही चीज निकल के आ रहा है। सो एक्सपेंशन के वे से भी हम देख रहे हैं दे आर सेम। सिमिलरली इसको भी आप खुद एक्सपैंड करके देख लीजिएगा। b6 a रेज टू पावर, अच्छा ये तो पहले वाला ही है, दूसरा वाला मैं लेती हूँ, ये a6 b4 a रेज टू पावर 6 b रेज टू पावर 4 इज एक्चुअली वन एंड द सेम एज b रेज टू पावर 4 एंड a रेज टू पावर 6, मतलब ये एंड ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, राइट? तो ये दोनों सेम है क्योंकि वही को किया गया है, b रेज टू पावर 4 आगे आया है, a रेज टू पावर 6 पीछे गया है। इसको एक्सपैंड आप खुद ही करके देख लीजिए, both will be the same. Now the question here says express the following number as a product of their prime factors in their exponential form. So ये नंबर है be in their exponential form. उसके लिए मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं पहले 576 के प्राइम फैक्टराइज कर लूं। सो 2 2s are 4, तो 5 minus 4 is 1 या 17 हो जाता है, 2 8s are 16 होके 17 minus 16 अगेन 1 बचता है और 6 नीचे आता है तो 16 होता है, तो 2 8s are 16। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, अगेन 2 से डिविजिबल, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 into 36 is 72, 2 into 18 is 36, 2 into 9 is 18 and then finally एक अलग नंबर प्राइम नंबर आया 3, 3 3s are 9 and यहाँ पर हमारा लॉन्ग डिवीजन, सॉरी नॉट लॉन्ग डिवीजन, डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हुआ। नाउ हाउ मेनी टाइम्स 2 is multiplied to itself to get 576? 2 is multiplied 6 times, right? So मैं यहाँ 6 times ऐसे लिख लेती हूँ and then 3 is multiplied 2 times. So इसको अगर मैं एक्सप्रेस करने जाऊँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना है प्राइम नंबर को, so it will be 2 raised to power 6
into 3 squared. This will give me 576. All right, so you can also do this product of and any number you can express as product of its prime factor, so that आपकी भी जो है प्रैक्टिस होती रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. All right. Now let's understand exponent of negative integers. तो negative integers में हमने सीख रखा था कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, जब n ऑड हो, व्हेन n इज ऑड, तो क्या आएगा? माइनस है. फाइनल आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा. ऑलराइट, नेगेटिव इंटीजर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद. और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इवन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब वही नंबर हम इवन नंबर टाइम्स 6 टाइम्स 7 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा. अच्छा, उसको करके देखते हैं. सपोज -1 टू द पावर है 4, मतलब मेरा n जो है इवन है, तो मेरा आंसर हमेशा आंख बंद करके पॉजिटिव ही आएगा, 1 ही आएगा. इन अ सिमिलर फैशन, अगर मैं इसी नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, लेट्स से 1 to 1 टाइम्स, तो मेरा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव इंटीजर ही आएगा. ऑलराइट, वैसे ही लेते हैं. मान लीजिए नंबर है -10, -10 टू द पावर 5. अच्छा, -10 टू द पावर 5 का मतलब क्या है? इट मीन्स -10 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 5 नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, ऐसे खोल के तो हम कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग दिस ब्रैकेट, एंड विद दिस एक्सपोनेंट आल्सो वी कैन आंसर. अब कैसे? लेट्स सी. फ्रॉम हियर डायरेक्टली वी कैन गो टू द हियर आंसर. ये नेगेटिव इंटीजर है, -10 है, और मेरा n जो है, जो एक्सपोनेंट है, वो ऑड है. सो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, सो मैं माइनस लगा दूंगी. एंड देन 10 मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स टू इटसेल्फ, बहुत इजी है, मतलब 1 लगा दो और उसके बाद 5 zeros, राइट? तो ये है आंसर. सो हम डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं. सिमिलरली लेट्स टेक -5 टू द पावर 4. तो क्या होगा? It means -5 is getting multiplied to itself 4 number of times. तो इसे वैसे ही बिना ओपन किए भी कर सकते हैं. आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज हियर एक्सपोनेंट इज इवन. तो एक्सपोनेंट इवन होगा तो आंसर मेरा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो कुछ भी आएगा इधर वो पॉजिटिव ही आएगा. सो इट मीन्स 5 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 2 टाइम्स. तो 5 into 5 क्या है? 25 है. 25 into 25 कितना है? 625. तो हम डायरेक्टली भी आंसर तक पहुंच सकते हैं. ऑलराइट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट व्हेन द एक्सपोनेंट इज इवन फॉर नेगेटिव इंटीजर, आंसर इज ऑलवेज, फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा. और जब मेरा एक्सपोनेंट ऑड होगा तो मेरा जो नेगेटिव इंटीजर जो कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई करके मैं एक नेगेटिव इंटीजर ही आंसर में लाऊंगी. नॉट नेसेसरली -1, इट कुड बी -8, इट कुड बी -200, एनीथिंग. तो आंसर बट फाइनली मेरा जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, दैट्स फॉर श्योर. ऑलराइट, सो नाउ let's end this video. Let's look forward to the next video in which I'll explain about laws of exponent. For that, please like, share and subscribe to my channel so that you remain updated with whatever I am posting on my channel.